सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 117 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ की चर्चा शुरू करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सहकारिता की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Section 117 of the Haryana Cooperative Society Act 1984 outlines various offences and penalties related to cooperative societies and their members. It covers areas like false returns, failure to produce documents, and breaches of first charge on property. High Court decisions related to this section often involves interpretations of these provisions, particularly concerning the applicability of other laws like the Indian Penal Code and the scope of registrar's suo motu powers. कहने का अभिप्राय यह है कि हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 117 सहकारी समितियों और उनके सदस्यों से संबंधित विभिन्न अपराधों और दंडों का विवरण देती है। इसमें झूठे रिटर्न्स, दस्तावेज प्रस्तुत न करने और संपत्ति पर प्रथम प्रभार की उल्लंघन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस धारा से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णयों में अक्सर इन प्रावधानों की व्याख्याएं शामिल होती हैं। विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता जैसे अन्य कानूनों की प्रयोज्यता और रजिस्ट्रार की स्वप्रेरणा शक्तियों के दायरे के संबंधित। धारा 117 में बताया गया है कि सहकारी समितियों से जुड़े लोग अगर नियमों की उल्लंघना करते हैं, जैसे कि झूठी जानकारी देना, जरूरी दस्तावेज न दिखाना या समिति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। की एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शन 117 एंड रिलेटेड हाई कोर्ट्स डिसीजंस आर एज फॉलोज। नंबर 1, पेनल्टीज फॉर फॉल्स रिटर्न्स एंड इंफॉर्मेशन। Subsection 3 specifies penalties for providing false information or willfully disobeying summons or orders related to the act. Number 2, penalties for failing to produce documents. Subsection 5 addresses the failure to produce books, records or other properties belonging to a cooperative society. Number 3, first charge on property. Subsection 2 deals with the penalties for members who dispose of property subject to a cooperative society's first charge or otherwise prejudice to that claim. Number 5, applicability of other laws. A High Court case, Bhimsen versus State of Haryana, clarified that an offence under section 1175 does not automatically excludes the application of section 409 of Indian Penal Code. Suo motu powers of registrars. According to the Punjab and Haryana High Court, a High Court decisions discuss the registrar's suo motu powers to revise decisions even when not directly invoked by a party to a reference under section 102. Audit related offences. Subsection 8 added later introduces penalties for managing committee members who fails to get accounts audited without sufficient cause. Interpretation of continuing breach. Subsection 5 addressing the failure to produce documents includes provisions for continuing breach which may be interpreted differently by the courts. These are just some of the key areas where High Court decisions have shaped the
understanding and application of Section 117. The specific details of each case, including the facts and arguments presented, will determine the court's interpretation and ruling. साथियों, धारा 117 में बताया गया है कि सहकारी समितियों से जुड़े लोग अगर नियमों की उल्लंघना करते हैं, जैसे कि झूठी जानकारी देना, ज़रूरी दस्तावेज न दिखाना या संपत्ति यानी कि समिति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। धारा 117 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, झूठी जानकारी देने पर सज़ा। अगर कोई व्यक्ति या सदस्य जानबूझकर गलत जानकारी देता है या रजिस्ट्रार के आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसे सज़ा दी जा सकती है। नंबर 2, दस्तावेज न दिखाने पर सज़ा। अगर समिति का कोई सदस्य या कर्मचारी ज़रूरी रिकॉर्ड, किताबें या समिति की संपत्ति नहीं दिखाता तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। नंबर 3, समिति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सज़ा। अगर कोई सदस्य समिति की उस संपत्ति को बेच देता है जिस पर समिति का कानूनी अधिकार यानी कि पहला हक होता है या उस अधिकार को नुकसान पहुंचाता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। नंबर 4, दूसरे कानूनों का भी इस्तेमाल हो सकता है। उदाहरण के लिए एक मामले भीमसेन बनाम हरियाणा राज्य में अदालत ने कहा है कि धारा 117 के तहत अपराध साबित होने पर भारतीय दंड संहिता और की धारा 409 भी लागू हो सकती है। नंबर 5, रजिस्ट्रार की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि रजिस्ट्रार अगर चाहे तो खुद भी किसी मामले की समीक्षा कर सकता है, भले ही किसी ने सीधे उससे शिकायत न की हो। नंबर 6, लेखा परीक्षा ऑडिट न करवाने पर सज़ा। अगर समिति के प्रबंधक या सदस्य बिना किसी सही कारण के खातों का ऑडिट नहीं करवाते हैं तो उन्हें भी दंडित किया जा सकता है। नंबर 7, लगातार नियम तोड़ना। अगर कोई व्यक्ति बार बार दस्तावेज न दिखाने जैसे अपराध करता है तो इसे लगातार उल्लंघना माना जा सकता है और उस पर ज़्यादा सख्त कार्रवाई हो सकती है। साथियों, आगे हम हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 117 की विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सहकारिता की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।